نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو ہر اس کام سے دور فرما دے جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور ہر اس کام سے ہر اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آل عمران کی آیت نمبر 58 تک پڑھا، اور اس میں کیا تھا، پچھلی 3 آیات جو مبارکہ جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرا نافرمانی کرے گا اس کے لیے میں سخت عذاب رکھوں گا، جو میرے نبیوں کی نافرمانی کرے گا ان کے لیے بھی شدید عذاب شدید ہے، پھر دنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یعنی کہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس قرآن پاک کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی پورا پورا اجر ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر عظیم عطا فرمائیں گے ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا کے آخر میں 58 آیت مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے، یہ آیت مبارکہ تمہارے لیے نصیحت ہے اور بہت حکمت والی ہیں، اور حکمت آیات مبارکہ ہے جن پہ تم عمل کرو گے تم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین بنا سکو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بڑے عالم دین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو سوچ لیں، سن لیں اچھی طرح، اپنے کانوں کو صاف کر کے سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آپ کی شکل پہ، نہ اپنی عقل پہ، اور نہ ہی آپ کے مال و دولت سے متاثر ہونے والا ہے۔ شکل بھی اللہ کی بنائی ہوئی، مال دولت بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کیسے خوش ہوتا ہے، کیسے اس کو اپنی رحمتوں کے نزول میں رکھتا ہے، جو انسان اس کے نبی کی اتباع کرتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑی بات یہی بری لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اس سے بڑی میرے لیے اور کیا گالی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑے اور ہدایت پہ عمل کرنا میں والا بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے ہماری اس دنیا کو بھی روشن کرے، اور ہماری قبر اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اس والا مقام رکھے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں 59 آیت مبارکہ کا، تو آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بلا شبہ مثلا مثال عیسیٰ، عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدم جیسے کہ مثال ہے آدم علیہ السلام کے، خلقہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا اس کے لیے،
लहू उसके लिए, कुन हो जा, फयकून तो वो हो गया। अलहकु हक है मैं वो का तेरे रब की जानब से, फला चुनाचा ना तकू तकुन हो जाओ आप मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। कमल फिर जो हाजा का झगड़ा करे आपसे, फिर इसमें बिम्बादी बाद इसके, माँ जो जा आका आ गया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म से, फकुल तो आप कह दो, तालो तुम आओ, नदउ हम बुलाए, अपना अना अपने बेटों को, व बना अकुम तुम्हारे बेटों को, व निसा अना अपनी औरतों को, व निसा अकुम तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना और अपने आप को, व अनफुसकुम और तुम्हारे नफ्सों को, सुम्मा फिर नब्तहिल गिर गिरा कर दुआ करें, फनजअल फिर हम भेजे, लानत अल्लाहि लानत अल्लाह ताला की, अलल कातिबीन झूठों पर। ये थे आज की आयत मुबारक। अब हम इसके ऊपर देखते हैं। नतलूहु हम पढ़ते हैं इसको, ताला वाओ इसका रूट वर्ड है, बस जिक्री और नसीहत में से है, जाल काफ रा इसका रूट वर्ड है, मिन तुराबिन मट्टी से, ता बार रा इसका रूट वर्ड है, तकुन आप हो जाओ, काफ वाओ नून इसका रूट वर्ड है, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से, मीम रा या इसका रूट वर्ड है, हा जगह हा जी हा आ झगड़ा करे आप से, हा जीव जीव इसका रूट वर्ड है, तालो तुम आओ, ऐन लाम वाओ इसका रूट वर्ड है, नदउ हम बुलाएं, दाल ऐन वाओ इसका रूट वर्ड है, अबना अना अपने बेटों को, बा नून वाओ इसका रूट वर्ड है, व अबना अकुम और तुम्हारे बेटों को, नून वाओ बा नून वाओ इसका रूट वर्ड है, वनिसा अना और अपनी औरतों को, वनिसा अकुम तुम्हारी औरतों को, दोनों का रूट वर्ड जो है नून सीन वाओ है, नब्ताहिल हम गिर गिरा के दुआ करें, बाहालाम इसका रूट वर्ड है, फनजअल फिर हम भेजें, जीम ऐन लाम इसका रूट वर्ड है, लानता लानत लाम ऐन नून इसका रूट वर्ड है। अब हम देखते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसीर। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। बिलाशुबा ईसा की मिसाल अल्लाह ताला के नज़दीक आदम की मिसाल जैसी है। अल्लाह ताला ने उसे आदम को यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, फिर उससे कहा कि हो जा, वो हो गया। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, बिलाशुबा ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के नज़दीक आदम की मिसाल जैसी है। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह ताला के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल भी आदम जैसी है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले बशर बनाया, जिनको कभी बशर तस्लीम किया करते हैं, जिनको सभी बशर तस्लीम करते हैं। अगर क्या सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए और बिन माँ के वालदैन के बगैर पैदा हुए, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मारूफ तरीके के मुताबिक मर्द और औरत के तल्लक के वजूद में नहीं आए, बल्कि बराह रास्त अल्लाह ताला के हुक्म के तहत वजूद में आए। जब माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए, तो फिर भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह बाप के बगैर पैदा होने की बिना पर अल्लाह ताला के बेटे कैसे हो सकते हैं? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे कैसे हो सकते हैं? यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बेटे कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला एक जिंदा जवेद हस्ती है, इस पर कभी मौत नहीं आने वाली। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आने वाली है। सैयदना ईसाइयों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया, उनकी दलील क्या है? ईसाइयों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बनाया,
उनकी पहली दलील ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आम इंसानों से मुख्तलिफ हैं। उनकी दूसरी दलील ये है कि उनकी पैदाइश बाप के वास्ते से बगैर हुई, और फिर आपको आम इंसान का कैसे कहा जाए। उनकी तीसरी दलील ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का तरीका पैदाइश ये था, ये बताते हैं कि आप बशर से ऊपर हैं, वो इंसान नहीं खुदा के बेटे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से बनाया, फिर उससे कहा हो जा तो वो हो गया। इसकी वजाहत हम देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, उन्हें बगैर माँ बाप के पैदा किया। अब अक्लमंद लोग जो हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शऊर दिया है, उनको फौरन ख्याल आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा लोग तसव्वुर करते हैं ईसाई, तो फौरन ये जहन में बात आएगी, तो आदम की तो माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था। यहाँ पे एक बाप नहीं है, माँ है, और इंसानों में से है। ये नहीं है कि वो किसी दूसरे मखलूक से थे, जिन थी, परी थी, या इस तरह की कोई बात थी। इंसान थी, अशरफुल मखलूकात थी, और उनसे बेटा पैदा हुआ, तो वो अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है। सवाल है ना, इंसान के जहन में फौरन आता है, ये कैसे हो सकता है। ऐसे ही अगर उनसे सवाल किया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में जरूर दस्तक होगी कि वाकई ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिन बाप के पैदा किया सिर्फ, और आदम अलैहिस्सलाम को बिन बाप और बिन माँ के पैदा कर दिया और अपने हाथों से बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो सिर्फ यही मौजूद है ना, कि वो मुर्दा को जिंदा करते थे, या इस तरह के जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तो इतना बड़ा मौजू है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह उसके अंदर फूंक दी। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हाइट, उनका कदोकाठ इस कदर बुलंद रखा था कि वो अर्श मुअल्ला पे जो फरिश्ते यानी कि अर्श मुअल्ला के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, हम्दो सना पढ़ते हैं, उनकी तस्बीहात सुन सकते थे। और उनके नाक के नत्थे इतने बड़े थे कि अगर वो सो रहे होते थे, तो चिड़िया या जानवर परिंदे उनके नाक के नथों में घोंसला तक बना रहे थे। इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद हाइट और कद्दो काठ सबसे आला अता किया। अब हम अपनी शख्सियत को देखें, और ये सोच के हैरत होती है ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर बनाया था कि अर्श की जो तस्बीहात है वो सुन सकते थे। बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जैसे जैसे इंसान गुनाह करता गया, उसके हाइट कम होती गई। वल्लाह आलम इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट जो थी वो इस कदर बुलंद थी कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जो हमद और सना करते थे अर्श मौला के इर्द गिर्द, उनकी वो हमद और सना सुन सकते थे। तो सोचा जाए तो बड़ा करिश्मा तो फिर वो हुआ ना, दुनिया में रह के अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को पा के इंसान कुछ भी कर रहा है, मट्टी के परिंदे बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये भी मौजा बहुत बड़ा है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तस्बीहात सुन सकते थे, इससे बड़ा मौजा और क्या होगा। फिर इससे कहा कि हो जा वो हो गया, इससे अल्लाह ताला की अपने कुदरत का शऊर दिलाया। सिर्फ उसके कुन कहने की से हर चीज वजूद में आती है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी सारी परेशानियों मुसीबतों से हमें रिहाई अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए कुन की शिफा वाला अल्फाज इस्तेमाल करवा दे, और जो अपने घरों को लौटे नहीं अब तक, खास तौर पे डॉक्टर राहत जबी के बेटे के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुन फरमा दे। उस बच्चे के लिए और उसके साथ जो दूसरा बच्चा है, अल्लाह तबारक व तआला दोनों के माओ की आंखों की ठंडक उनको लौटा दे। आमीन सुमा आमीन।
अलहक़ में रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, यही हक है तेरे रब की जानब से, चुनाचा आप शक करने वालों में से ना हो जाना। अलहक़ में रब्बिका, यही हक है तेरे रब की जानब से। इसकी वजाहत क्या है? यही हक है तेरे रब की जानब से, यानी कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ बयान किया वो हक है और आला तरीन सच्चाई है। अम्बिया के वाकयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत की खसूसी तरबियत है। वला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, चुनाचे आप शक करने वालों में से ना हो जाना, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आप भी शक में मुब्तला ना हो जाना कि कहीं नाउज बिल्ला माअज़ल्लाह अल्लाह के बेटे तो नहीं जो उनको मौत नहीं आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से रुखसत कर गए, अलविदा कह गए, पैगम्बर सहाबा इकराम तबा ताबईन सब चले गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात क्यों नहीं हुई? तो ये चीजें क्या है, शक में डालने वाली हैं। ईमान के कमजोर लोग ऐसी चीजों को ज्यादा पकड़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत के साथ फरमाया कि तुम इस चीज की शक में ना पड़ जाना कि अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आदम की तरह बनते हैं, इसका रसूल और कलमा और रूह एक ही है, अल्लाह ताला के हक को दलील के साथ वाज़ह करने वाले हैं। इस चीज में तुम्हें कोई भी जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला और कुछ है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मामला कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया ही इसलिए है ताकि जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो सके और हम जो शक का बीज हमारे शैतान हमारे दिमागों में बीज बोने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको धो डाले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बयान करने वाला बनाए। अल्लाह ताला ने हक का दलाल के साथ वाज़ह किया है, इसलिए फरमाया फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला दलाल, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा कुछ नहीं है। जब इंसान को हक नजर आ रहा हो माने ना, तो उसके लिए क्या होता है, उसकी गुमराही के अलावा कुछ नहीं उसके पास होता। फमन हाज्जक فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। फिर जो आप से उस बारे में झगड़ा करें जो उनके पास इल्म में से है, आपके पास आया है, तो आप कह दो तुम आओ अपने बेटों को और अपनी बेटियों को बुलाओ, अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतें और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को तुम्हें भी बुलाएं, हम गिर गिरा कर दुआएं करें, बस जो झूठा हो उस पे अल्लाह ताला की लानत। वमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, फिर जो आपसे इसमें झगड़ा करें इसके बाद के जो इल्म में से आपके पास आया है। इल्म में से क्या आया है? अल्लाह तबारक ताला का कुरान। अल्लाह तबारक ताला के कुरान में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम मर्तबा है, उस पे तौहीद की जो है निशानियां वो वाज़िह होती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मकाम से बढ़ा के रबूबियत पर लाना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनी इल्म के साथ दलाइल के साथ वाज़ह कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। तो साबित हो जाता है कि ऐसे यकीनी इल्म को ना मानने वाले अनाद में मुब्तला हैं। इसकी बहस महज अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत और जिद की बिना पे है। ऐसे शख्स का मकसद हक की पैरवी नहीं है, इसलिए दलील के साथ उनका इलाज नहीं किया जा सकता। इस मकसद का मुबालहा का तरीका इख्तियार किया जाए ताकि फैसला हो सके। फकुल तालू नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो आप कह दो तुम आओ हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को बुलाएं, अपनी औरतें और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को और तुम्हें भी बुलाएं, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, बस हम झूठों पर अल्लाह ताला की लानत भेजेंगे। इसकी वजाहत क्या है? इस आयत मुबारका में मुबाहला
का तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया है। दो ग्रोहों के दरमियान दलील से बात ना मानी जाए तो आखिरी चैलेंज जो होता है वो रहा होता है, इसके फैसला करवाया जाए। वाला एक दूसरे को मुबालहा एक दूसरे पर लानत बददुआ करने को कहते हैं। इसका मकसद फरीकैन अपने बच्चों को ले आते हैं और अल्लाह ताला के से दुआ करते हैं कि जो झूठा है उस पर लानत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबालहा के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबालहा के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा फातिमा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम से, यानी कि आपकी औलाद आपके साथ थी। नजरान के ईसाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखकर क्या रद्द अमल किया? नजरान के ईसाइयों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मरगूब हो गए। उन्होंने बाहमी मशवरे से की मोहलत मांगी। मशवरे में उन्होंने एक आलिम से कहा, बनी इस्माइल में से ये अल्लाह ताला का पैगंबर भेजने का वादा फरमाया था, हो सकता है ये पैगंबर हो। फिर आप फिर एक पैगंबर के मुबालहे का ये नतीजा निकल सकता है कि तुम्हारे झूठे बड़े सब हलाक हो जाएं। अल्लाह की कसम मैं ऐसे चेहरे को देख रहा हूँ, अगर ये दुआ करेगा तो पहाड़ भी अपनी जगह से नए जगह से टिल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम सुलह करके अपनी बस्ती की तरफ निकल जाए। ईसाइयों ने मुबालहा ना करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ईसाइयों का मुबालहा ना करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये लोग मुबालहा कर लेते तो ये वादी आग से बरसती, इस वादी पर आग बरसता। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया है कि नजरान के नसरानियों के दूसरे सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुबालहा के लिए आए। हालात का जायजा लेने के बाद एक ने अपने साथी से कहा, ऐसा ना करो, अल्लाह की कसम अगर यहाँ अल्लाह ताला के नबी हैं तो और हमने मुबालहा किया तो हम और हमारे बाद हमारी नस्ल कभी फलाह नहीं पाएगी। चुनाचा आप वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिजिया देने पर राजी हो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 4380। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इमाम अहमद ने इब्ने अब्बास का कौल नकल किया है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबालहा की नियत करने वाले ऐसे कर गुजरते तो लौटने के बाद उन्हें अपना माल मिलता, ना ही अहलो यार। सैयदना इब्ने अब्बास का ये कौल तिरमिजी और नसाई में मौजूद है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2225। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक तीन, जिसका हमने खुलासा देखा। और इसमें अहम जो पॉइंट है वो यही है कि जब कभी भी आप हक पे हो तो डट जाए, अल्लाह तबारक व ताला आपकी जरूर मदद करेगा। दूसरा, किसी ऐसे इंसान की बात पे यकीन ना करें जो आपको अल्लाह ताला की तौहीद से हटा रहा है। सबसे अहम पॉइंट जो है कि अल्लाह ताला की तौहीद से जो आपको इधर उधर ले जाने की कोशिश करे, आप उस इंसान की बातों में कभी मत आए। कभी मत सोचे कि ये बंदा जो कह रहा है शायद ठीक हो। आपकी जो शायद वाला लफ्ज है ना, आपको गुमराही की तरफ ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ किसी चीज की भी देर नहीं है। तरीकाकार हमारा गलत हो सकता है, हमें मांगना ना आए वो अलग बात है, लेकिन हमारा रब हमारी किसी बात को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाई किस लिए? कि हम जो इंसान है अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत करें जो फरिश्तों से भी अफसल हो। और फरिश्तों से अफसल कैसे हो सकती है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का जो है एक सिस्टम बनाया, वो ये है कि जैसे एक रिमोट कंट्रोल रोबोट होता है वैसे ही है। मेरे अल्फाज कुछ हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को
ऐसे बनाया कि उनके अंदर ना खाने की हरस है, ना पैसे की, ना माल की, ना औलाद की, और ना ही मोहब्बत की। वो सिर्फ एक ही ट्यून में, एक ही सिमत की तरफ चल रहे हैं। उनको गुमराह करने के लिए शैतान भी नहीं वहां पहुंच रहा। इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीजें लगाई। ख्वाहिशात नफ्स लगाया, इंसान को माल दौलत से मोहब्बत में हरीस बनाया, उसको अपनी औलाद की खातिर बहुत बेईमानियां करते देखा इंसानों को। अक्सर इंसान अपनी औलादों के अच्छे मुस्तकबिल करने के लिए दूसरी की औलादों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, नशे पे लगा देते हैं, ऐसे क्राइम करते हैं जिसमें नस्लें तबाह हो जाती, किस लिए? अपनी नस्ल को बेहतर बनाने के चक्करों में। और इस सारी चीजों के अंदर अगर इंसान अपने नफ्स को बचाता है, शैतान के हमलों से बचता है, कमियां कोताहियां हर एक में है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, अगर इसके बावजूद वो अपने ऊपर मुसलसल वर्क कर रहा है, उसे पता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी रहती है, कोई ना कोई कुताही मुझसे हो रही है, अगर वो इसी को बार बार रिपीट करता है, अपने आप का मुहासबा करता है, जैसे हम आईने के सामने खड़े होके फाइनल देखते हैं ना कि हम तैयार हो गए हैं किसी जगह जाने के लिए, किसी इवेंट में, किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी तकरीब में जाने के लिए, हम कितना अपने आप को फोकस करते हैं बार बार, आखिरी लम्हे तक हमारी कोशिश ये होती है कि एक दफा देख लें सब ठीक है। ऐसे ही कभी हम अपने रब के डर से अपने आप को रोजाना आईने के सामने खड़ा कर लें, जमीन के आईने के सामने, और सोचें आज मैंने क्या क्या गलत किया। अब यकीन करें, रोजाना आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप सोचेंगे हाय, मैंने पहले इस बारे में कभी क्यों नहीं सोचा था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इंसान के अंदर जिसको तवज्जो चाहिए। तवज्जो से मुराद ये है कि उनको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को अल्लाह तबारक व ताला उसकी गर्दन के गर्दन से पकड़ के दीन की तरफ ले आता। हमारे गांव में मेरी भाभी मुझे कुछ दिन पहले बता रही थी, हमारे गांव में ना, हमारी जहाँ हमारे आबाई घर है, और उसकी बैक साइड पे एक औरत रहती थी जिसके बेटे ही बेटे थे। और वो मेरी जो चची वगैरह है उनकी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी। उसके बेटे ही बेटे थे और वो इसी खुशी में थी मेरी कौन सी बेटी है, और बड़ी मसलन के जिद्दा दिल औरत कह ले। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसकी जबान के अंदर से ना बगैर किसी कट के, बगैर किसी तकलीफ के खून जारी होना शुरू हो गया। और इतना जारी होता था कि समझ नहीं आती थी खून आ कहाँ से रहा। इस कदर ब्लड जो होता था कि रेड कलर का बिल्कुल फ्रेश, एक जो होता है ना गंदा या किसी ऐसा मसलन के अजीब से कलर का नहीं, बिल्कुल फ्रेश रेड कलर का उसका ब्लड था। और इस कदर होता था कि उससे संभाला नहीं जाता था। ऐसे अगर जुबान को वो लटकाती तो ऐसे नीचे एक जैसे होते हैं ना पानी खड़ा हो जाता, खून की एक तह सी बन जाती। बहुत सारी मेडिसिन खाई, किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ा। वहां पे कोई हकीम है, हिकमत करते हैं, और वो हाफिज कुरान भी हैं। उन्होंने पूछा कि बीबी आप कुरान पढ़ी हो? कहती हाँ मैं पढ़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कुरान पढ़ती हो डेली? कहती नहीं। कहती कब का नहीं खोला? कहती जब से मैंने पढ़ा ना उसके बाद मैंने खोला ही नहीं। तो वो कहने लगे, हकीम साहब कहने लगे कि तुम कुरान पढ़ा करो, तुम कुरान पढ़ोगी तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला बगैर दवाई के शिफा देगा। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो औरत जैसे ही घर में आके कुरान पढ़ने लगी, थोड़ा थोड़ा जो अक्सर भूल ही हुई थी, और उसने कोशिश की दोबारा से नए सिरे से कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने बगैर मेडिसिन के उसको शिफा दी।
कहने का बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो हमें ऐसे भी हिदायत दे सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ्री हैंड किया है। अच्छाई और बुराई के रास्ते बता दिए, ये करोगे तो ये सजा, ये करोगे तो ये जजा। अब सजा और जजा के दरमियान का जो फासला है, हमें खुद कवर करना है। हमारे कदम अगर डगमगा गए हैं कहीं पे भी, तो हमने अपने कदमों को कितनी जल्दी संभालना है, ये हम पे डिपेंड करता है। इंसान में गलतियां होती हैं, कई जगह ऐसा होता है कि इंसान का दिल दिमाग जो होता है ना, एक जंग शुरू कर देता है। दिल कहता है ये काम कर ले, दिमाग कहता है ये ना करना। ऐसे ही करते 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 अगर हमारे अमाल अच्छे होते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो जीत जाता है, वो मना कर देता है कि नहीं ये काम नहीं करना, ये बुराई है। कोई नहीं देख रहा, रब तो देख रहा है। इंसान अपने आप को रोक लेता है। और वो ही असल मकसद होता है कि अपने नफ्स को कंट्रोल करने का। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर ये सारी चीजें डाल के फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या रुतबा दिया, अशरफुल मखलूकात का। जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात हैं, सबसे बेहतरीन मखलूक हम हैं। किस वजह से? इसी वजह से कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कंट्रोल कर लेते हैं, उनका मकाम अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद तरीन होता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हमें भी अपने नफ्स को कंट्रोल करने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व ताला हमसे राजी हो जाए, हमें कबूल फरमा ले। हमसे अगर कोई कमी कोताही हो गई है तो अल्लाह तबारक व ताला हमें मुआफ फरमा दे। हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे वो राजी हो जाए। हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। हमारी आने वाली औलादें हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बने। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।